Now for doing this, we are going to use a tool as a Python. So let me introduce what is a Python. So Python is basically an interpreting the high-level generic programming language. We all know, because we all know, like computers are the machines, and we say these are the electronic machines. So basically, they only understand 0, 1. And I hope you already know the background of computers. So I'm carrying this like you already know what is binary language or not. So fundamentally, computers understand binary language, but they are really hard for human beings. So we people do the programming in English native languages or languages which are near to our spoken languages, but computer only understand binary systems. So we need a program which can convert these English interpreted terms into a binary language, and this is what we call either a compiler or an interpreter. Collectively, we call them as a translator. So, so basically, Rosam named Python after a very famous comedy show of television, Monty Python's Flying Circus. And he was a fan of this program, so he named this language after the name of this Flying Circus Python module. It was developed in 1990. This is a small introduction of Python language. Now, what is IDE? So basically, an integrated development environment. That's the full form of IDE. That is a bundle of sort of software tools for programming and development. Now, as I said, that we people generally do or write program in high level language, but computer understand them in binary language. So we need a tool which can convert these high level English text into a binary language. And this is done by what we call a translator. So we need a translator. Then second thing, we need an editor on which we can write the program, जहाँ पर हम अपने programs को लिख सकते हैं. तीसरा, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कई तरह की मिस्टेक्स करते हैं जिनको हम सिंटैक्टिकल और सेमेंटिकल मिस्टेक्स कहते हैं. तो हमें एक ऐसा टूल भी चाहिए जो हमारी उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सके. उसको हम बेसिकली डीबगर कहते हैं. तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इस सब तरह की जो छोटी छोटी फैसिलिटीज हैं, लाइक एडिटर, डीबगर, ट्रांसलेटर, इन सबको एक पैकेज में बंडल करके आप लोगों को देता है और आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रेजेंट करता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोग्रामिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं. जब हम पाइथन आईडीज के बारे में बात करते हैं तो पाइथन के कुछ पॉपुलर आईडीज हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आइकन के फॉर्म में. विजुअल स्टूडियो, इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. PyCharm, denoted by PC. This green symbol, as you can see here, it is known as Atom. This is Spider. And recently, Google ने एक ऑनलाइन एडिटर लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं Colab. I will introduce it, and one is what we call a Jupyter. We will follow Jupyter, and because Jupyter and Colab are very much similar to each other, so I would prefer that either you go by Jupyter or you go by Colab. And let me show you how we can install them. So अगर आपको अपने सिस्टम पर पाइथन को इंस्टॉल करना है तो आप सबसे पहले anaconda.com पर जाइए. आई एम शोइंग यू. आप गूगल खोलिए. गूगल स्क्रीन आ रही? ओके. यहां पर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए. और इंस्टॉल एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशंस पर क्लिक करिए. ना यहाँ से आप योर डेटा साइंस टूल किट स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ डाउनलोड लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं. आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं. सबसे पहले हमें एक आईडी डाउनलोड करना है, तो हम डाउनलोड की तरफ चलते हैं. जैसे ही हम डाउनलोड की तरफ जाएंगे तो एनाकोंडा इंस्टॉलर्स की आपको लिस्ट मिलेगी. एज पर योर सिस्टम आप अपना वर्जन लॉन्च डाउनलोड कर लीजिए. अगर आप विंडो सिस्टम पे काम करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 32 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर या 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर को डाउनलोड करिए. आप साइज देख सकते हैं, इसकी साइज जो है वो 400 MB से ज़्यादा है. अगर आप 64 बिट मशीन पर काम कर रहे हैं तो अब मैं प्रेफर करूंगा 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर डाउनलोड करिए. अदरवाइज आप 32 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर पे जाइए. अगर आप मैक मशीन पर काम करते हैं तो अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, ग्राफिकल इंस्टॉलर और कमांड लाइन इंस्टॉलर.
और अगर आप लिनक्स मशीन पर काम करते हैं तो अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, x86 आर्किटेक्चर और पावर 8 पावर 9 इंस्टॉलर। मैं मैक मशीन पर काम करता हूँ, इसलिए मैं 64 बिट ग्राफिक इंस्टॉलर की तरफ जाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इसकी साइज जो है वो 442 MB है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्लास के बाद डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पैकेज डाउनलोड कर रखा है और इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 क्लिक करते चले जाइए। और यहाँ जैसे मैं कंटिन्यू कर दूँ, फाइनली आपका जो पाइथन इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। जो लिनक्स और मैक यूजर्स हैं वो टर्मिनल विंडो को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने टर्मिनल विंडो ओपन की हुई है यहाँ पर। आपको ये चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप सिंपल पाइथन टाइप करके एंटर मारेंगे। तो जैसे ही आप एंटर मारेंगे, अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है तो आपको इस तरह का एक मैसेज लिखा आएगा जहां पर पाइथन वर्जन के साथ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे अभी मेरे जो सिस्टम में है वो पाइथन 3.7.6 वर्जन इंस्टॉल्ड है और ये देख पा रहे हैं। और जैसे ही आप फर्दर डाउन द लाइन जाएंगे तो आपको ये 3 ग्रेटर देन सिंबल्स के साथ एक नया स्टार्टिंग लाइन स्टार्टिंग पॉइंटर मिलेगा। That shows that the Python has been installed in your machine and it is working properly. Now to locate, I am simply writing a small command here, like I'm writing print happy learning inside it and just hit, so you can see that it is printing out, so the Python is working properly. So that's how you can install Python using Anaconda. Now the second option is if you do not want to install your Python or you have a Gmail ID with you, तो आप गूगल खोलिए, अपने आईडी से उस गूगल को ऑन द विंडो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और वो ही पाइथन टाइप करके रखना है। विंडो पे भी आपको वो यूज करना है बट कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करना है। अपने गूगल को आप अपने कनेक्टिविटी चाहिए पड़ेगी। तो जैसे ही आपका गूगल क्रोम लॉगिन हो जाए, यहाँ पे देखिएगा आपको अपना फोटो दिखाई देगा और यहाँ आप साइंड इन दिखाई देंगे। तो आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल कोलैब और आपको एक नई विंडो मिलेगी जहां पर आपको गूगल कोलैब के ऑप्शंस की तरफ ले जाएगी। तो आप पहली विंडो को क्लिक कर लीजिए, सॉरी पहली लिंक को आप क्लिक कर लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिला है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, सो आई हैव मेनी फाइल्स विद दिस, बट आई कैन क्रिएट अ न्यू बुक। This is my new Jupyter book and it is actually directly running to Google repository via online system. So that's how you get a one ID interface here. I will explain one by one. तो इस आईडी में आप देखेंगे यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फोल्डर इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मिलेगी। अगर आपको फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ से आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी सेल होगी जहां पर हम इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स लिखते हैं। जैसे जो कमांड मैंने वहां लिखी थी वो मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लिखना है प्रिंट हैप्पी लर्निंग। अगर मुझे इस सेल को रन करना है तो मैं रन टाइम पे जाऊंगा और यहाँ पर रन ऑल कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मुझे शॉर्टकट से रन करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं शिफ्ट कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एंटर मारूंगा। शिफ्ट एंटर कॉम्बिनेशन की याद रखिए कमांड को रन करने के लिए, सेल कमांड को रन करने के लिए शिफ्ट एंटर की। आई एम रिपीटिंग, सेल को रन करने के लिए शिफ्ट और एंटर कॉम्बिनेशन की को प्रेस करेंगे और ये सेल रन हो जाएगी और ये आपका आउटपुट दिखाई देगा हैप्पी लर्न। ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है इसको हम नोटबुक बोलते हैं एंड दिस इज बेसिकली
inspired with one of the popular IDE of Python which we call Jupyter Notebook, और जो कि एनाकोंडा भी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। मैं आपको वहां भी दिखाऊंगा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे लेके आ सकते हैं इसको। इस पर्टिकुलर नोटबुक को हम इसलिए नोटबुक बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो अकेडमिशियंस होते हैं वो इसी आईडी को प्रेफर करते हैं टीचिंग देने के लिए और लर्निंग प्लेटफॉर्म लेने के लिए, क्योंकि यहाँ हम दो चीजों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। पहली चीज हम कोड लिख सकते हैं, दूसरी चीज हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट वो पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूं दिस internship program is designed to learn programming and data structure using Python. And if I run this, you see this particular text come as a text. तो ये जो लाइन थी वो एज अ टेक्स्ट हो गई और ये रन नहीं होगा। तो क्या होता है, जब हम अकेडमिशियंस बेसिकली कोड समझाते हैं या लिखते हैं तो हमें कई जगह कमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कई जगह हमें कोड की रिक्वायरमेंट होती है और हमें उसका आउटपुट भी इंस्टेंटली देखना होता है। तो ये एक परफेक्ट टूल होता है सिखाने और लर्न करने के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अकेडमिशियंस जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर्स जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो बिगनर लर्नर होते हैं, वो जुपिटर को एज अ आईडी यूज करते हैं पाइथन को लर्न करने के लिए। इसके अलावा भी दूसरे आईडीज हैं, जैसे हमने देखा एटम है, पाइचार्म है। पाइचार्म इज मोस्टली यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर कॉर्पोरेट लर्नर्स, बट वो लाइसेंस के साथ आता है और मोस्टली कॉर्पोरेट सेशंस उसको यूज करते हैं ना। ये गूगल कोलैब था जहां पर हम एक जुपिटर नोटबुक इंटरफेस पा सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम्स को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, सब करके देख सकते हैं। इज इट विजिबल ना? मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि यही जो जुपिटर नोटबुक आपने अपनी मशीन पर इंस्टॉल की है, आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो वापस आपको टर्मिनल पे जाना पड़ेगा या अपने कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पे जाना पड़ेगा। एक तरीका है, वहां से हम ओपन कर सकते हैं और वहां पर आप टाइप कीजिए जुपिटर स्पेस नोटबुक। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बोलेंगे, आप अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखें और इन स्टेप्स को लिख लें, बिकॉज डाउन द लाइन आप इसको इंस्टॉल करेंगे और आप इसको यूज भी करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप लिख दें कि आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप जुपिटर नोटबुक को एक्सेस करेंगे। तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट विंडो को ओपन करेंगे और जो विंडो और मैक यूजर्स हैं वो वहां पर लिखेंगे जुपिटर स्पेस नोटबुक, और जो लिनक्स के यूजर हैं, उबंटू के यूजर्स हैं, वो इस नोटबुक और जुपिटर के बीच में ये एक हाइफन सिंबल का यूज करेंगे, नोटबुक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो विंडो और मैक यूजर्स हैं वो जुपिटर और नोटबुक के बीच में स्पेस यूज करेंगे, और जो उबंटू यूजर्स हैं वो जुपिटर के बाद हाइफन सिंबल लेंगे और फिर नोटबुक लिखेंगे। दैट विल execute your Jupyter notebooks. As you know that I am working on Mac machine, so I simply write Jupyter notebook, and as I hit enter, मेरे ब्राउजर में एक नोटबुक ओपन हो गई। आप देख सकते हैं एक जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है। यहाँ पर मेरे मशीन्स के सारे फोल्डर्स मुझे दिखाई देंगे। यहाँ से मैं अपने आप को नेविगेट कर सकता हूँ, मैं जिस भी फोल्डर में काम करना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि मैं अपनी गूगल ड्राइव्स के इस फोल्डर में काम करना चाह रहा हूँ पाइथन ट्रेनिंग, और यहाँ पर मैं जैसे ही अपने इस फोल्डर में आऊँगा तो राइट टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं मैं अपना पॉइंटर मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है न्यू, और यहाँ से मैं अपनी पाइथन फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ बिल्कुल आपको वही इंटरफेस मिल रहा है जो गूगल कोलैब पे मिल रहा था। मैं यहाँ भी आपको रन करके दिखाता हूँ कि हमारा सेशन कैसे चलने वाला है। आप देखिए यहाँ भी आपको वही कमांड यूज करना है, शिफ्ट प्लस एंटर, और उसी से आपकी सेल एग्जीक्यूट करने वाली है ना। यहाँ पर कोड और टेक्स्ट के ऑप्शंस के लिए आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉम्बो बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आपको कोड और मार्क डाउन ऑप्शन रहेंगे।
तो जब आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप मार्क डाउन बना दीजिए और आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज टू लर्न पाइथन। So this particular line considered as a text, the next line the previous line was considered as an instruction, because यहाँ पर हमने इसको मार्कडाउन में सेट कर रखा था और यहाँ पर हमने इसको कोड में सेट कर रखा है। इसको रन करने के लिए आप यहाँ ऊपर मेन्यूज आइटम भी देख पा रहे होंगे, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, सेल, कर्नल, विजिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको अगर रन करना है तो आप कर्नल को पे जाइए, यहाँ से रन कर दीजिए, रन ऑल, रीस्टार्ट करना है। कर्नल इज बेसिकली a kind of machine that runs this whole environment. Okay, so that's how you can which IDE is best for me, like Jupyter Notebook is best. Once you become proficient in Python, then you can go either for Atom or PyCharm. हम वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं चीज़ों को। यस, आइटम्स का बिल कैलकुलेट करता है। ना जब हम बिल की बात करते हैं तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि आपने कौन सा आइटम खरीदा है, किस क्वांटिटी में खरीदा है, उसकी क्या प्राइस है और उस प्राइस पर, उस क्वांटिटी पर उसका टोटल अमाउंट कितना क्रिएट हुआ है। जब वो टोटल अमाउंट तैयार होता है तो हमें ये पता है कि हम एक गवर्नमेंटल सिस्टम में रहते हैं, उस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स भी देना होता है। तो हम ये देखते हैं कि उस पर कुछ वेट टैक्स लग रहा है, हो सकता है कि वो कोई डिस्काउंट दे रहा हो, नहीं दे रहा हो। तो इस तरह की और भी स्कीम्स जो होती हैं वो शॉप्स में चलती रहती हैं। तो ये एक छोटा सा स्नैपशॉट जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक पीओएस रिसिप्ट है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल रिसिप्ट। नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ सेल रिसिप्ट आप देखेंगे कि वो बनिया होता है, वो एक कागज के ऊपर लिखता है, आइटम लिखता है, आइटम का नाम लिखता है, उसकी क्वांटिटी लिखता है, उसकी प्राइस लिखता है और क्वांटिटी को जैसी प्राइस से मल्टीप्लाई करता है उसका टोटल अमाउंट तैयार हो जाता है। इस तरीके से अगर आपने 10 आइटम लिखे हैं तो वो 10 आइटम की लिस्ट तैयार करेगा, फाइनली वो 10 आइटम्स के टोटल अमाउंट को सम करेगा, दैट इज बिकम योर बिल अमाउंट। ना अगर इस पर वो टैक्स देता है तो वो उस पर अपना बेट भी दिखेगा और बेट जितने परसेंट का होता है वो उतने परसेंट और उसमें ऐड करेगा और तब जाके आपका टोटल अमाउंट बनेगा। ये सारी की सारी प्रोसेस अगर आप देखें तो इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ये एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर से होकर गुजर रही है। दैट मीन्स दैट कि आप एक एक करके आइटम्स को लिखेंगे, उनकी क्वांटिटी को लिखेंगे, उनकी प्राइस को लिखेंगे, उस क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से जब सारे आइटम्स लिखे जा चुकेंगे तो सारे आइटम्स के अमाउंट को आप सम कर देंगे। जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर आपका जो भी 8% टैक्स तैयार होता है वो टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स को भी अमाउंट में जोड़कर आप अपना टोटल अमाउंट तैयार करेंगे, जो कि एक बिल की तरह आप कस्टमर की तरफ देंगे। कस्टमर उसको कैश से पेमेंट कर सकता है। अब लेट सपोज आपका टोटल अमाउंट 960 रुपीज हुआ है लेकिन कस्टमर ने आपको 500 के नोट दिए हुए हैं। So that means the cash was came in the form of 1000 but bill was of 960 rupees, तो आपने उसको 40 रुपीज एज ए चेंज वापस किए। तो ये सारी डिटेल वो पीओएस रिसिप्ट में रिकॉर्ड हो जाती है। इसको रिकॉर्ड करने के दो फायदे हैं। जब कंप्यूटर इस कैलकुलेशंस करता है तो ऑब्वियसली जब वो अमाउंट को सम कर रहा होगा तो एरर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, ये एज अ रिकॉर्ड उस मशीन में सेव हो गया है, तो अगर आप 4 महीने बाद भी आते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपने क्या सामान लिया था, किस रेट पे लिया था, तो वो रिकॉर्डेड उस कंप्यूटर में रखा हुआ है। एंड until and unless something disaster is not happen, that particular data will exist whole life of this universe. So these are the some benefits of what you say the computational problem solving. This is one example. Now I am going to put another example before you, which I feel it is a computational problem example. Now we all have been asked such kind of puzzle questions. तो ये एक छोटी सी पजल क्वेश्चन है आपके सामने जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मेरे पास एक फार्मर है, एक वॉल्फ है, एक गोट है और एक ग्रास है। हम सब जानते हैं कि अगर फार्मर वहां से हट जाए तो वॉल्फ जो है वो गोट को खा जाएगा और गोट जो है वो घास को खाने की कोशिश करेगा। ना फार्मर की प्रॉब्लम ये है कि उसको तीनों के तीनों
गोट, वोल्फ और ग्रास को नदी के उस पार निकालना है, लेकिन कंस्ट्रेंट जो है वो ये है, कंस्ट्रेंट ये है कि एक समय पर नाव में केवल 2 लोग चल सकते हैं या 2 लोग बैठ सकते हैं, और ये हम समझ रहे हैं कि अगर 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो फार्मर को बैठना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही जानता है कि नाव कैसे चलाई जा सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि फार्मर के साथ एक समय में कोई एक दूसरा बैठ सकता है। तो जॉब जो है वो ये है कि इन तीनों को सेफली, सिक्योरली नदी के उस तरफ उतारना है। कंस्ट्रेंट ये है कि कभी भी ये सिचुएशन नहीं बननी चाहिए कि वॉल्फ और बकरी एक तरफ हो जाएं या बकरी या ग्रास एक तरफ हो जाएं। नहीं तो जैसे ही वो अकेले होंगे वो एक दूसरे को खा जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, जो पजल प्रॉब्लम है, जो हम कई बार देखते हैं, कई बार हमसे पूछी जा चुकी होगी और हमने इसमें काफी समय भी लगाया होगा, और हमने कई बार, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सक्सेसफुली इसको सॉल्व भी किया होगा ना। ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। कैन वी यूज कंप्यूटर टू सॉल्व दिस? This is our objective. Can we write a program which can solve this? Yes, Aman, I am completely agree with you. We can solve it with computer because it is a computational problem. So what is my discussion is that all the problems which are computational problems which can be solved by using sequence of steps can easily be solved by computer science. और इनको सॉल्व करने के लिए ही हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, और हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझने के लिए हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशंस मैंने बाय हैंड आपके सामने दिया हुआ है। तो पहली चीज जो मुझे जरूरत होती है किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, वो ये होती है कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर पाऊं। अगर मैं किसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो सम हाउ आई नीड अ वे थ्रू विच आई कैन रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंपल सा नोटेशन लिया हुआ है कि ये एक नोट बनाया हुआ है। यहाँ पर एफ जो है वो फार्मर को स्टैंड कर रहा है, जी जो है वो गोट, sorry, grass, and loin and wolf. You can say this, or that's got confused basically. F for farmer, G for grass, L for goat, and W for wolf. और ये जो स्टार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नाव की पोजीशन है जो नदी के एक किनारे पर है। So this is F for farmer, G for goat, L for lamb, G for grass, L for lamb, and W for wolf. And this star that you can see is denoting the position of the boat. This pipe symbol is denoting the river, and on the other side, dash is denoting the blank. So basically, we start from at one bank where you have all these 5 items on one side. आपको फ्लावर भी मिला है, प्लीज बी ऑन म्यूट, प्लीज बी ऑन म्यूट। आपको घास भी यही है, आपकी लैम्प भी यही है, और बॉल भी यही है, और नाव भी यही है ना। यहाँ से हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप लेते हैं हम उनको एल्गोरिथम कहते हैं। सो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की 2 रिक्वायरमेंट हो गई। पहली चीज हो गई रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब हम प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तब हम उसके ऊपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कैरीड आउट करना स्टार्ट करते हैं, जिन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये माने कि हम यहाँ पर आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप को कैरी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर मान के चलो कि मैं फार्मर और वॉल्फ के साथ चला जाता हूँ नाव में लेके, तो नदी के दूसरे किनारे पर लैम्प और ग्रास रहेगा। तो लैम्प जो है वो ग्रास को खा जाएगी, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव में नहीं है। इसलिए मैंने इसको रेड सिंबल से हाईलाइट कर रखा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑन द राइट मोड साइड अगर आप देखेंगे कि मैं फार्मर के साथ लैम्प को ले जाता हूँ, तो ये बॉल्ब जो है वो गोट को खा जाएगा, दैट इज नॉट ऑल्सो एक्सेप्टेबल। Now down the line, if you see, this option is available where we take farmer and goat and wolf and lamb, or the grass left here. So that is acceptable. Sorry. And down the line, we see farmer has to come back. Okay. Hello. Hello. Please be on mute. Hello. Yeah. तो इस स्टेप से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली बार जो है वो गोट को ले जाएगा और वापस से घास को वापस ले आएगा। और नेक्स्ट टाइम में जब हम सीक्वेंस में आगे चलेंगे तो आप सीक्वेंस ड्रॉ करते चले जाइए, वापस से फार्मर वापस लौट के आएगा और फिर वो
गोट को छोड़कर घास को ले जाएगा। तो इस तरीके से वो ये 3 सीक्वेंस को पिक करते हुए फाइनली तीनों के तीनों आइटम्स को नदी के उस किनारे पर छोड़ने में पॉसिबल हो जाएगा। और ये सीक्वेंस जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं जो इस ट्री में दिखाई दे रहे हैं। फाइनली या तो आप इस सीक्वेंस को विजिट करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे जो ग्रीन सिंबल पर रीच्ड है, या फिर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ग्रीन पे पहुंच जाएंगे। ये दोनों सिचुएशन में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जहां हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पांचों ये चारों आइटम नदी के उस किनारे पर पहुंच जाना चाहिए अंडर द कंस्ट्रेंट कि वॉल्व जो है वो गोट को नहीं खाए और गोट जो है वो ग्रास को नहीं खाए। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम 2 थिंग्स आर नीडेड, जो कि हम समझ गए। पहला है रिप्रेजेंटेशन that basically captures all the relevant aspect of the problem, and second is algorithm that solve the problem procedural step using representation। तो ये दो चीजें अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिक्वायर्ड होती हैं तो उनको हम कंप्यूटेशनली प्रॉब्लम कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर्स आर वेरी इजी टू एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप एंड दे कैन एग्जीक्यूट those steps very quickly and without any error, so we can say जो एल्गोरिथम्स हैं और जो कंप्यूटर्स हैं वो परफेक्ट मैच है। तो हम सबसे ज्यादा एल्गोरिथम्स को पढ़ते हैं कंप्यूटर्स को पढ़ते समय, और इन दोनों को बार बार यूज करने वाले हैं हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में। आई एम गिविंग यू अनदर प्रॉब्लम। हियर वी हैव 5 डिफरेंट पर्संस at the one end of the river. Now the number that you can see are the time taken by one particular person to reach from this end to another end. So like the first person will take 1 minute, second person will take 3 minutes to reach other end, third person will take 6 minutes to reach other end, fourth will take 8 minutes, and the last one take 12 minutes. अगेन कंस्टेंट यही है कि इस नाव में एक समय में 2 ही लोग बैठ सकते हैं, और जब 2 लोग बैठेंगे तो जो नाव का टाइम लगेगा वो मैक्सिमम टाइम होगा। मींस अगर हम 1 और 3 नंबर वाले को एक साथ इस नाव में बिठाते हैं तो उस तरफ पहुंचने में हमें 3 मिनट लगेंगे। फिर नाव को वापस कोई लेके आएगा, तो अगर मान के चलो कि 1 मिनट वाला लेके आता है तो लौट के आने में 1 मिनट लगेंगे। तो टोटल टाइम इनको उस तरफ भेजने में लगे 3 और लौट के आने में लगा 1। फिर हम अगले किसी को भी भेजेंगे तो इसी प्रोसीजर को कैरिड आउट करेंगे। नाउ इन दिस प्रोसीजर आप समझें कि हमें इन पांचों के पांचों लोगों को नदी के उस तरफ उतारना है, वो भी 30 मिनट के कंस्टेंट के साथ। तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूं। आप इस प्रॉब्लम पे टाइम स्पेंड कीजिए, कोशिश कीजिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कल मैं इसके सॉल्यूशन को डिस्कस भी करूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए मैं एक बार और प्रॉब्लम को बता रहा हूँ कि हमारे पास ये 5 बंदे हैं जो नदी के एक किनारे पे खड़े हुए हैं। हर एक बंदे के ऊपर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स में नंबर लिख रखा है जो कि एक समय है उस बंदे को उस नाव से दूसरे किनारे पर पहुंचने में लगने वाला समय। इस नाव में एक समय में केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं, और जब नाव को हम उन 2 लोगों को बिठाकर दूसरे समय में ले जाएंगे तो जो नाव को लगने वाला समय है वो मैक्सिमम होना चाहिए दोनों में। जैसे अगर हम 1 और 3 को बिठाते हैं तो नाव को उस तरफ पहुंचने में 3 मिनट लगेंगे, और अगर वहां से 1 मिनट वाला बंदा वापस लेके आता है तो लौटने में उसको 1 मिनट लगेगा। इस तरीके से आपको इन पांचों लोगों को नदी के उस तरफ उतारना है, लेकिन टोटल मिनट्स जो होना चाहिए वो 30 मिनट या उससे कम होना चाहिए। हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है। तो जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन पे पहुंचे, उसी तरीके से आपको यहाँ भी कॉम्बिनेशन बनाकर इसको सॉल्व करना है। ये एक कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को ढूंढना है। इज दैट क्लियर नाउ? Okay. So now we know what is computational problem, and we also know that the computational problems are basically comes with 2 constraints. One is the representation, second is the algorithm. Representation is a way through which you represent the state of the problem, and algorithm is the way through which you can change the state of the problem. So when you say change the state of the problem, you need to have a very sequential procedure, and that sequential procedure runs in a step-by-step mode, and that's what we call an algorithm. So जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस एग्जीक्यूट करने में मास्टर होते हैं। वो स्पीड के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक्यूरेसी के साथ स्पीड एक्यूरेसी करते हैं। तो कंप्यूटर और एल्गोरिथम का एक परफेक्ट मैच बनता है, उनकी हम जोड़ी बना देते हैं,
और उन एल्गोरिथम को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है प्रोग्राम। तो अब अगर हमको कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर से कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर बना लिया है, हमें पता है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या हैं, हमें पता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो अब हम कैसे कम्युनिकेट करें कंप्यूटर को? तो ये कम्युनिकेट करने का काम करता है प्रोग्राम। तो बेसिकली प्रोग्राम फैसिलिटेट अस टू कंबाइन रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम इन वन यूनिट, एंड दैट इज आल्सो हेल्प अस टू कम्युनिकेट दिस होल थिंग टू द कंप्यूटर। तो जैसे ही कंप्यूटर पर वो रिप्रेजेंटेशन और वो एल्गोरिथम पहुंचती है, कंप्यूटर उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और फाइनली हमें उसका आंसर मिल जाता है। और इसीलिए हम प्रोग्राम को बोलते हैं कि प्रोग्राम्स आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन that can be understood or executed by a computer to perform a specific task. So this is what the program or programming link is here. We know what is computational problem. We know how to represent a computational problem. We know how to solve a computational problem. Now, how can we communicate this whole thing to the computer? When we say the communication, तो आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट 10 लोग पढ़ाते हैं, तो वो 10 तरीके से ही सॉल्व होता है, 10 तरीके से पढ़ाते हैं। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आपसे 10 लोग बात करते हैं, तो उनके 10 तरीके से बात करने का 10 तरीके होते हैं, अलग-अलग तरीके से वो बात करते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि एक यूज़र को कंप्यूटर से बात करना है और बात करने का तरीका हो गया प्रोग्राम। तो चूँकि 10 अलग यूज़र कंप्यूटर से बात करेंगे और बात करने का तरीका प्रोग्राम है, तो ये भी हो सकता है कि 10 यूज़र 10 अलग-अलग तरीके से एक ही प्रोग्राम द आउटपुट व्हाट यू वांट। But program is a one, once it's read by a third person, he is going to like it. So programming is what I say, it is an art of writing instructions. और अब हम चलते हैं कुछ हैंड्स ऑन एक्सरसाइज के लिए, जहां पर हम समझेंगे कि इस नोटबुक में हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिक लेवल प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। और उसके पहले जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो हमें सबसे पहले बात करना पड़ती है प्रोग्राम। So program is basically generally a collection of data and instructions. So you need to understand what is the data. Yeah, Visual Studio Code is also good. ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल के थ्रू किसी ऑनलाइन कंपाइलर पर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स भी आते हैं। मुझे पता है थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ये करना पड़ेगा आपको। हाँ, आप गीक फॉर गीक्स का आईडी यूज कर सकते हैं, आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स का आईडी यूज कर सकते हैं, और भी टन्स ऑफ ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर इक्वली एप्लीकेबल। So data, basically data क्या होता है? तो data are values. REPL is the best. Yes, REPL.it is the best. You can use that. Data are the values such as numbers and characters. तो basically जो values होती हैं उनको हम data बोलते हैं, और जो most basic values होती हैं उनको अगर हम रखें, तो हमारे पास integers होते हैं जो numbers हैं, like आप देख पा रहे हैं whole numbers को हम integers बोलते हैं, like 10, 0, -11 like। दूसरे तरह के नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, जिनको हम जनरली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के नाम से जानते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में, जहां पर हम डेसिमल पॉइंट नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे 3.14 -9.05। तो ये नंबर्स आगे एक्सटेंड होकर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तीसरे तरह का डेटा जो है वो कैरेक्टर सिंबल्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर सिंबल्स केवल अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। अगर हम किसी स्पेशल सिंबल्स और किसी नंबर को भी सिंगल कोड नोटेशन में लिखते हैं, तो हम उसको कैरेक्टर सिंबल्स की तरह ही मानेंगे। अगले तरह का डेटा जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, सो these are the some types of data, and then when we work with computers we need to learn about something called data types. Now what is a data type? So basically we have seen that we have different types of data, like integer data, floating point data. So data type is basically define the type of value. So we have seen like the values can be integer, values can be real, values can be character, values can be string. So we need a data type which defines those types of values. Okay, so let's continue with our discussion. I was talking about data types. Data type basically defines the type of value. तो ये हम समझते हैं कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो ये बताते हैं कि वैल्यू किस तरह की है। So to me, okay, so I was talking about data types, and
Then what is a variable? So basically variable we can consider it as a storage unit that store those values or data. So in programming we can consider a variable as a storage unit that keeps those values that can be replaced by other values during the program. So as you can see with this pic, so variable you can consider it as a container in which you can put or replace values with one another. So this is what we call value. And we know we were talking about computational problem, and during computation we carried out some mathematical operation. Now these mathematical operations are actually carried out through operators. I'll show you in hands-on that what are these types of operators और उनको हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में. तो आज की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज में मैं आपको इन तीन चीजों के बारे में बताऊंगा. पहली डेटा एंड डेटा टाइप्स, दूसरा वेरिएबल क्या होता है, और तीसरा ऑपरेटर्स, और एक छोटे लेवल के प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं. सो गाइस, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ हैंड्स ऑन एक्सरसाइज. Please be with me and see how Python works and how is it beautiful. So जब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन की तो हम छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे 3+5. तो हम यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं. तो जैसे ही हम इस सेल में 3+5 लिखेंगे, आप देखेंगे कि हमें इसका रिजल्ट मिल गया 3+5. अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन कराना है, जैसे मुझे 4 मल्टीप्लाइड बाय 17 चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू 68. I can work with other operators like 4 minus 3, that is equal to 1. If I do it reverse, like 4 minus 6, that will give you minus 2. So this cell is beautifully works with the instructions. और हम इस तरह के कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सीक्वेंशियल वाइज. Now ये इस तरह के कैलकुलेशंस आप पाइथन सेल पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पाइथन सेल कैसे मिलेगी. तो आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और पाइथन टाइप कीजिए, तो आपको ये पाइथन सेल एक्टिव हो जाएगी, जहां पर आप ये 3 ग्रेटर देन सिंबल्स के साथ एरो देख पा रहे होंगे. जो इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ लिखे 3+5, वो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ और मुझे एज इट इज रिजल्ट मिलेंगे. इसको बताने के पीछे रीजन ये है कि आप ये जुपिटर सेल देख रहे हैं, ये जो सेल जिसको हम कोड सेल बोलते हैं, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू the command prompt cell for Python. So whatever you write here, you can exactly write in this cell also. Like अगर मैं लिखता हूँ 4 multiplied by 17, that will give me 68. अगर मैं लिखता हूँ 4 minus 6, that will give me minus 2. तो या तो मैं ऐसे करूँ या मैं ऐसे करूँ लाइन बाय लाइन, बट हमें पता है कि एक लाइन का प्रोग्राम जो होता है वो एफिशिएंट नहीं होता है, और जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो मल्टीपल लाइन के प्रोग्राम होते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल स्क्रिप्टिंग. तो जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो ये पाइथन सेल एफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम अपने आप को आईडीई और एडिटर की तरफ ले जाते हैं. तो अब हम इस पाइथन सेल पर काम ना करते हुए कहाँ काम करेंगे, इस जुपिटर आईडी के ऊपर, जहां हम एक साथ कई सारी लाइंस पे काम कर सकते हैं. और जब हम कई सारी लाइंस पे काम करते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम अपने प्रोग्राम को इंटरेक्टिव कैसे बनाते हैं. तो मेकिंग प्रोग्राम इंटरेक्टिव. when we say interactive का मतलब क्या है कि हम यूजर से बात कर सकें, यानी ये मशीन यूजर से बात कर सके. जब हम यूजर से बात करने की बात करते हैं तो हम उससे पूछते हैं, हम उसको कुछ डेटा दिखाते हैं, हम उससे कुछ डेटा लेते हैं. तो अगर हम बात करते हैं डेटा दिखाने की, तो हमें कुछ आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है. तो पाइथन में हम आउटपुट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं थ्रू प्रिंट and this brackets. Now within this brackets we can write values, we can write strings, we can write anything. Like अगर मुझे यहाँ पर एक string पास करना है तो मैंने ये लिखा happy learning, और you see I got printed out happy learning. This is it as an output. Now I can also print a value from here also, like print 10. So you see here I got 10 printed out. Now इसको और वर्सेटाइल बनाने के लिए हम, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है सी लैंग्वेज का, हम कुछ और कैरेक्टर्स का यूज करते हैं जो इस आउटपुट को और फॉर्मेटेड वे में प्रेजेंट करते हैं. जैसे मान लो कि मुझे हैप्पी फर्स्ट लाइन में चाहिए और लर्निंग सेकंड लाइन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा हैप्पी एंड देन देयर इज अ बैक स्पेस कैरेक्टर /n एंड लर्निंग.
तो नाउ यू कैन सी हैप्पी इज ऑन फर्स्ट लाइन, लर्निंग इज ऑन सेकंड लाइन। और ये सारे काम हम केवल एक स्टेटमेंट से कर रहे हैं, वो है प्रिंट स्टेटमेंट। सो प्रिंट स्टेटमेंट इज बेसिकली a statement that we use to give output from the program। तो हम प्रोग्राम से आउटपुट देंगे यूजर के लिए, ये हम किसके थ्रू देंगे? प्रिंट से। यहाँ पर हम स्ट्रिंग भी यूज कर पा रहे हैं और हम यहाँ वैल्यू भी यूज कर पा रहे हैं, और हम दोनों भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं वैल्यू, सॉरी, और फिर हम कॉमा लगा के वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू 10। ओके, सो दैट इज कि हम एक स्ट्रिंग और वैल्यू यानी कांस्टेंट को एक साथ प्रिंट कर पा रहे हैं। ना यहाँ आपने देखा, और थोड़ा और वर्सेटाइल करते हैं, लाइक अगर मुझे हैप्पी और लर्निंग अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। तो ये देखिए, ये मल्टी लाइन प्रोग्राम है, यहाँ पर हम दो मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि पहली लाइन में हैप्पी और दूसरी लाइन में लर्निंग प्रिंट हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ, मान के चलो कि मुझे एक ही लाइन में हैप्पी और लर्निंग मिले लेकिन दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ कॉमा लगा के लिख देता हूँ एंड दैट्स इट। तो यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग हैप्पी लर्निंग। इससे हम ये समझिए कि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो प्रोग्राम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर देगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोग्राम कर्सर उसी लाइन पर रहे जिस लाइन पर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, तो आप इस ट्रिक का यूज करें जिसमें आपने लिखा है एंड इक्वल्स टू एंड टू ब्रैकेट्स विथ नो स्पेस वैल्यू। ओके, तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक करके हम ये काम कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ हैप्पी लर्निंग एक साथ लिखा हुआ है, जबकि हमें स्पेस चाहिए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा और ये हैप्पी लर्निंग फॉर्मेटेड वे में आपको दिखाई देगी। ये एक तरीका है। ओके सर, प्लीज रिपीट। सो अगर देखिए, आप पहले सेल को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले प्रिंट ने हैप्पी को पहली लाइन में प्रिंट किया, सेकंड प्रिंट ने हैप्पी को सेकंड लाइन में प्रिंट किया। अगर हम चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में प्रिंट हो लेकिन हम दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगली लाइन। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले प्रिंट में कॉमा यूज कर ये स्मॉल ट्रिक यूज कर सकते हैं, जहां हम लिख सकते हैं एंड इक्वल्स टू द टू ब्रैकेट्स और हियर वी आर नॉट सप्लाइंग एनी वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये उस लाइन को, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर जाने से रोकेगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसी लाइन पर बना रहेगा, ताकि जब अगला प्रिंट एग्जीक्यूट हो तो वो उसी लाइन में प्रिंट करे। जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो यू सी दिस इज गॉट। ये बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट होता है उसके एंड में स्लैश एन होता है, जो स्लैश एन हमने यहां देखा ना, ये। तो ये क्या करता है, अगली लाइन पर आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को शिफ्ट कर देता है। दिस स्लैश एन वी जनरली referred for new line. This slash n we generally referred for new line. Okay? तो इसको रोकने के लिए हम वो एक ट्रिक यूज करते हैं। ना प्रिंट फंक्शन अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। से अगर आपको प्रिंट में एक साथ कई सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, तो मान के चलो हमारी वैल्यूज हैं 10 और 20। So you can see that we can see them here. Now but we want to format in more better way. हमें इसको और अच्छे तरीके से फॉर्मेट करना है। हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, हम ये बताना चाहते हैं कि वैल्यू ए किसकी है और वैल्यू बी किसकी है। तो आप लोग जिनको सी का नॉलेज है वो जानते हैं कि हम फॉर्मेट स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। हम यहाँ पर परसेंट ही डालेंगे बिकॉज ये दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं, और यहाँ पर हम परसेंट के साथ इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर डिसाइड कर लेगा कि ए किसका है और बी किसका है। और जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो यू सी दिस 10 इज रिप्लेसिंग दिस परसेंट डी, और ये जो 20 है वो दूसरे परसेंट डी को रिप्लेस करेगा। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 आ जाएगा और बी इक्वल टू 20 आ जाएगा। एंड नाउ वी कैन रिमूव दिस आर ऑल्सो, सॉरी। So the value of a equal to 10 and b equal to 20.
That's how you can format your output using this percent or moderator symbol. तो ये एक प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाने का तरीका है। पहला इंटरेक्टिव वे हमने देखा जहां पर हम प्रोग्राम से आउटपुट दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम प्रोग्राम में इनपुट दें। Input to the program. No, there is no importance to have a knowledge of C and C++ to learn Python. It is very basic and generic language. Okay, तो जहां जरूरत होगी वहां पर मैं एक एक चीज की डिटेलिंग कर रहा हूं, बट ध्यान रखना ये 15 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तो आप लोगों को भी घर पर लिटरेचर पढ़ना है और मुझसे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, स्क्रीन फुल हो गई है, तो ये आप लोगों को करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछेंगे उतना बेटर होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन था जो कि हमारे प्रोग्राम से आउटपुट देता था, वैसे ही हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है जो कि हमारे प्रोग्राम से इनपुट हमारे यूजर से इनपुट ले सकता है। तो इस पर्टिकुलर इनपुट फंक्शन को यूज करने के लिए आप चाहें तो सीधा इनपुट भी लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे इनपुट लिखा और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे एक इनपुट सेल मिलने का स्टार्ट दिखाई दे रही है। आप तो यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई। अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो आप देखेंगे ये सिंगल कोट में फिक्सेड है, मींस इट इज इन्वर्टेड बाय सिंगल कोट, विच मींस दैट मैंने यहाँ नंबर सप्लाई किया था लेकिन यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग की तरीके से इनपुट दी गई। Now, ये इनपुट जो आपको दिखाई दे रहा है, what print return? Print returns output to the user. That's generic means very simple and common. And please write your serious questions on chat box. I will answer them on a very next day. So this input, if you want to make it more interactive, so you can write some message inside it. Like what we can do here, we can write enter a number. Okay, so if you say I have written this string and I run this cell, you see I got this message, enter a number, and I again enter this number 12 here. So I have entered this 12, it is taken it as a string, but where it is taken at, we don't have any idea. तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये नंबर कहाँ गया। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो भी डेटा हम इनपुट में ले रहे हैं उसको हम कहीं स्टोर करें। तो स्टोर करें तो मैंने क्या बताया था, स्टोर कैसे करते हैं। तो स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं वेरिएबल की, जो कि मैंने बोला था वेरिएबल इज अ स्टोरेज यूनिट इन प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नम, और अब मैंने इसको रन किया और फिर मैंने इसको 12 दिया, तो आपको पता चला यहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन अगली सेल में अगर मैं नम की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे ये 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर मैंने इनपुट में दिया था इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू, वो कहाँ जाके स्टोर हो गया, इस नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली वो बहुत असेंशियल यूनिट होते हैं किसी भी प्रोग्राम की, और इन वेरिएबल्स की हेल्प से हम अपने डेटा को प्रोग्राम में यूज करते हैं, उसमें हम स्टोर करते हैं और यूज भी कर सकते हैं वन बाय वन। Okay, so like here we have taken this num. Now जब हमने इसको लिया तो हमने यहाँ नंबर इनपुट किया था जो मैंने कहा, और आप ये देख रहे होंगे ये जो नंबर है वो एक स्ट्रिंग की तरीके से आया है। अभी हम थोड़ा समझते हैं कि स्ट्रिंग में और नंबर में क्या डिफरेंस होता है, या ये जो सिंगल कोट या डबल कोट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा, सॉरी, यहाँ मैंने लिखा 5 + 3। Sorry, that was converted into markdown, converted into code. आंसर क्या आया, 8, क्योंकि 5 और 3 दोनों नंबर हैं, और जब हम दो नंबरों को ऐड करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है जो कि उसका सम होगा अगर हम ऐड कर रहे हैं। अगर यहीं पे मैं स्ट्रिंग का यूज करता हूं 5 and 3, then see the next element what I am next output what I am getting is 53। यहाँ पर स्ट्रिंग मींस ये क्या कंसिडर कर रहा है कि ये 5 एक नंबर ना होकर स्ट्रिंग है।
तो अगर आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से ऐड करोगे तो उसको हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं और वो एक दूसरे को आपस में जोड़ देंगे। तो 5 और 3 मिलकर क्या हो गए 53 और ये अभी भी स्ट्रिंग ही है। तो क्या करें हम? तो इनपुट जो फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या देगा आपको, स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट में लेगा। बाय डिफॉल्ट विल टेक स्ट्रिंग वैल्यू और आई शुड से कि आप कुछ भी वैल्यू क्यों ना दो वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें, क्वेश्चन ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा कि ये एक इंटीजर था, ये एक स्ट्रिंग था, तो मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे बदल सकता हूँ या स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे बदल सकता हूँ। तो इसके लिए हम डेटा टाइप्स को समझते हैं। तो जैसे हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप था, अगर मैंने इसके अंदर 5 दिया तो ये देखिए आप, इसने इसको रिमूव कर दिया और ये इसने कन्वर्ट कर दिया इसको नंबर 5 में। तो अब अगर मैं यहाँ एन इनपुट नंबर ले रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस पूरे सेंटेंस को टाइप कास्ट कर देना है। यू सी नेक्स्ट टाइम आई एम गिविंग 12 और अब अगर मैं इसको आउटपुट करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर एक नंबर स्टोर्ड है, ना कि स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो आप समझे हम कि स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको केवल ये टाइप कास्टिंग करनी है, इंट लिखना है और इंट के ब्रैकेट में उस स्ट्रिंग को लिख देंगे तो ये नंबर तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अभी तक हम 3 चीजें सीख गए हैं। पहली चीज कि हम प्रोग्राम में आउटपुट कैसे देंगे, प्रिंट के थ्रू। दूसरी चीज कि हम प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट के थ्रू। तीसरी चीज, चूंकि इनपुट हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू देता है, हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम उसको टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। और हमने कुछ ऑपरेशन भी सीख लिए। इनके बेसिस पर हम अपना चलो पहला प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम किसी भी सर्किल के एरिया के देने पर उसकी रेडियस को आउटपुट में देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोग्राम है कि हमें एरिया इनपुट में लेना है और उसकी रेडियस बताना है कि उसकी रेडियस क्या होगी। हम सबको पता है कि सर्किल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, आर रेडियस है। इसको हम रिवर्स वे में यूज करेंगे। ओके, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो पेरीमीटर को इनपुट में लेते हैं और रेडियस बताते हैं। तो पेरीमीटर क्या है, 2 पाई आर। यहाँ 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर आपकी रेडियस है। पेरीमीटर हम इनपुट में लेंगे, रेडियस हम आउटपुट में देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेरीमीटर हम इनपुट में लेंगे, रेडियस हम आउटपुट में देंगे। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमें यहाँ कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला वेरिएबल होगा पाई, जो कि एक कांस्टेंट है जिसको हम 3.14 से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ हम एक पेरीमीटर ले रहे हैं, तो हम पेरीमीटर में क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं और यहाँ हम एक मैसेज डालते हैं, एंटर द पेरीमीटर ऑफ सर्किल। दैट्स इट। नाउ टू मेक इट सिंपल, अभी मैंने क्या बताया था कि ये जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा स्ट्रिंग इनपुट में लेता है, बट मुझे क्या चाहिए, रियल वैल्यू इनपुट में चाहिए। रियल वैल्यूज के लिए डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं फ्लोट। तो हम इसको डिफाइन करेंगे फ्लोट के थ्रू। तो पेरीमीटर में हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। नाउ our formula of perimeter was perimeter is equal to 2 into pi into r। तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 into pi। okay, so this is what we call computation और this is computational problem, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप में समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमने पाई को लिखा 3.14, फिर हमने पेरीमीटर को लिखा, पेरीमीटर को रिप्रेजेंट किया, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 पाई आर। तो पहले हमने पेरीमीटर को एज अ इनपुट लिया,
इनपुट लेने के लिए हमने फंक्शन यूज किया इनपुट, एंटर द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। हम जानते हैं कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज को ही इनपुट में लेता है, लेकिन पेरीमीटर जो होती है वो एक रियल नंबर हो सकती है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया किसमें, फ्लोट में और रियल नंबर में, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया जिसका नाम है पेरीमीटर। नाउ हमें पेरीमीटर और रेडियस के बीच का रिलेशन पता है, हमें पता है पेरीमीटर जो होता है 2 पाई आर के बराबर होता है, तो उस रिलेशन से हमने रेडियस की वैल्यू को पता किया, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। यहां तक हमारा कैलकुलेशन हो गया, विच मीन्स की जो रेडियस वेरिएबल है उसके अंदर रेडियस ऑफ द सर्किल आ चुका होगा, जिसको हम प्रिंट करा सकते हैं। एंड वी नो दैट कि जब हम आउटपुट देते हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ सर्किल इज, दैट्स इट, और यहां हमें केवल वेरिएबल का नाम डालना है रेडियस। नाउ लेट अस ट्राई टू रन दिस। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एंटर द पेरीमीटर ऑफ सर्किल। लेट्स सपोज द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 314.0. Let's see what is the radius. So the radius is like 50. You can calculate by your hand. I made it very simple. So that's how you can write a small program. Now in this program आप देख सकते हैं कि हमने कुल मिलाकर 4 इंस्ट्रक्शंस का यूज किया, जहां हमने एक वेरिएबल लिखा पाई, जिसकी वैल्यू रखी हमने 3.14, एक इक्वेशन तैयार की हमने इनपुट लेने के लिए, दैट इज पेरीमीटर, देन रेडियस, पेरीमीटर, द फॉर्मूला जो हमने यूज किया जिसके थ्रू हमने पेरीमीटर को कन्वर्ट किया रेडियस में, और फिर हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी उसको आउटपुट दिया यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो ये सिंपल सी स्टेप्स हम कैरीड आउट करते हैं व्हाइल डूइंग द प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूँ जहां पर हम कोशिश करेंगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आने की, लाइक कन्वर्ट अ 4-bit binary number into decimal। हम सब लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नहीं है। बोला। ओके, सो जब भी हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो तरीका बड़ा सिंपल है। मान के चलो आपके पास एक बाइनरी नंबर है 1001। अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लेफ्ट मूव बिट से स्टार्ट होते हैं और यहाँ हम 2 टू द पावर 0, नेक्स्ट इज 2 टू द पावर 1, नेक्स्ट इज 2 टू द पावर 2, नेक्स्ट इज 2 टू द पावर 3, लाइकवाइज हम ये बढ़ाते चले जाते हैं। और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं हम सिंपल लिखते हैं द डिजिट वैल्यू multiplied by 2 to the power 3 plus digit value 2 to the power 2 plus digit value raised to the power 1 and plus digit value base to the power 0. So that's how we can short it, and this become 8, this becomes 0, this becomes 0, and this become 1 into 2 to the power 0 means 1. So finally we can say that the decimal representation of 1001 is equals to 9, because 8 plus 0 plus 0 plus 1 is 9. So that's how we can convert it. So here what you have to do, you have to read bitwise and then like we will calculate it. So what I am doing, I am simply, because I know कि मेरे पास केवल 4 बिट हैं बाइनरी नंबर्स की, तो मैं एक एक कर इनको पिक करूंगा और मैं पहले लिख रहा हूँ फर्स्ट बिट जिसको मैं लेफ्ट मोस्ट बिट कंसीडर कर रहा हूँ इनपुट। एंटर दी लेफ्ट मोस्ट बिट
Okay. Again, we see like ये जो फंक्शन है वो मुझे एक स्ट्रिंग का इनपुट देगा, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में। फिर मैं जाता हूँ अपनी सेकंड बिट के लिए। Then we can look for the third bit. वापस का नहीं आ रहा। And now we can look for the last bit, which is what we call fourth. And this is what we call our rightmost bit. So that's how you record these 4 bits in 4 variables named first, second, third, and fourth. Now what you can do, you can convert this number into decimal. So decimal number is like, first you write fourth bit, fourth, multiplied by what I said, 2 to the power 3. Now this is a power operator that we use in Python. So like here you see, अगर आपको 4 की पावर 4 लिखना है तो आप इस एस्टेरिस्क साइन को 2 बार यूज कीजिए, दिस इज इक्वल टू 256। अगर आपको 2 पावर 3 करना है विच इज इक्वल्स टू 8। तो पाइथन इज वेरी सिंपल। अगर आपको किसी की पावर रेज करना है तो आपको बेस नंबर पहले लिखना है, डबल टाइम स्ट्रिक एंड द पावर नंबर। थर्ड digit multiplied by 2 to the power 2, second bit multiplied by 2 to the power 1, and first bit multiplied by 2 to the power 0. So that's how we can convert this binary number into decimal. As you can see, we have been given with only 4 bits, and now we can print it. Decimal number is 3. Now let's run this. So first it is asking for leftmost bit, which is I guess 1. Next is 0. Next is 0. Last is also 0. Sorry, 1. And you see the decimal number is 9, which we have just got. Like 1001 is equivalent to 9. So that's how we can write small programs. I guess you are very clear with these these concepts. And now let's talk about some operators. So you are very familiar with like mathematical operators, like arithmetic operators. So we have plus. So plus works in very simple way. Let's suppose we have two variable a that is equals to 10, b that is equals to 20. So what we do plus of these two, a plus b, and print them. So that gives you the addition. Then we can look for the subtraction. So we simply replace it with a symbol of minus. Then multiplication. Sorry. Now let's see division. Division is a little tricky. Like so here, if you write division, you find it is equals to 0.5. Now sometimes what you want floor division. Floor division means like if let's suppose I divide 45 by 25, this gives me 2.25. But I don't want this 0.25, या मुझे इसका आंसर केवल इंटीजर में ही चाहिए। तो मैं इसको एक और तरह का ऑपरेटर दिया हुआ है पाइथन में जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन।
अभी हम यहाँ 45 यूज करेंगे, यहाँ 20 यूज करेंगे और फ्लोर डिवीजन में हमें इस डिवीजन को 2 बार यूज करना है। ये देखिए 2.25 की जगह पर केवल 2 आया है। ओके, तो पहला हमने देखा एडिशन, दूसरा हमने देखा सब्सट्रैक्शन, तीसरा हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, चौथा हमने देखा डिवीजन, फिर हमने देखा डिवीजन। डिवीजन में हमें कोशेंट मिलता है डिवीजन का, बट लेट सपोज अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो हम यूज करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर का। दिस टाइम जब आप 45 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर में 5 मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम देख ही चुके हैं कि अगर मुझे किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर की पावर से रेज करना है तो हम एस्टेरिस्क साइन को डबल रेज की पावर, ये 2 है, ये 3 है, लेट सपोज, तो वी सिंपली राइट दैट इज इक्वल टू 2/8। ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ओके, इसके बाद अगले जो ऑपरेटर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जहाँ हम किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन कर सकते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है a दैट इज इक्वल्स टू 10। अब अगर मुझे इस वैल्यू को प्रिंट कराना है तो दिस इज व्हाट वी कॉल एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मुझे इसी वैल्यू में कोई नई वैल्यू ऐड करना है तो मैं यूज करूंगा प्लस असाइनमेंट सम नंबर which means that I am adding 10 in a। so ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है a is equals to a plus 10। sometimes we call them shorthand assignment। now you see a is become 20 now। now this can work with every other arithmetic operators, means you can use with minus equal to 10 and then print a। so now 20 minus 10 is become 10। now you can use with multiplication and then print it। so you see 10 into 2 is become 20। so these assignment operator you can equally use with every arithmetic operators। now with this arithmetic and assignment, the next operators which are frequently used in our programming is what we call comparison operator। like when we want to compare two values to constant, like if you want to make them whether the two numbers are equal or not, we use this two equal sign to means this equal or assignment operator 2 times। like if we say 3 is equal to 3, it will give you a boolean output that is a true। and programming, anything which is not 0 is true, anything 0 is false। like if I say 3 is equal to 5, that will give me a false। now this is what we call equal operator। now with the opposite of equal we have not equal। so like if I write 3 not equal to 5, the relation is true, so this is true। if we write 3 not equal to 3, that relation is false। so the opposite of equal is not equal। similarly when we have comparison operator we have greater than, less than, greater than equal to, less than equal to। so if I say greater than 5, you see 3 is not greater than 5, so it comes as false। we can work with equal also, that is also 5। but if you do it in a reverse way, like 3 is less than 5, the same will give me a true value। so we have equal operator, we have not equal operator, we have less than operator, we have greater than operator, we have less than greater than operators, all other operators। so these all we call comparative operators। now there is another category of operators that we have is what we call logical operators। these operators are basically used to combine the two expressions, and in this series we have three operators
or operator, and operator, and not operator. Like here we see 3 is not equal to 3. Or, so I simply write or 3 equal to 3. तो जब भी मैं इस और ऑपरेटर का यूज करूंगा ये दोनों एक्सप्रेशन में ये चेक करेगा कि इनमें से कोई एक ट्रू है कि नहीं. अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा. जब मैं और ऑपरेटर यूज करूंगा तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा. लेट्स सी. You can see this answer is true because पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है क्योंकि 3 is not equal to 3 बट दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू है. अब अगर मैं इसको एंड ऑपरेटर से रिप्लेस करूंगा तो रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों तरफ ऑपरेटर या दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए. तो यहाँ पर फॉल्स आया. अगर इसको ये करना है तो मैं लिख सकता हूँ that is not equal to 3, that is true, 3 is equal to 3, that is true. So and will give me true in this case. Not operator that changes true to false and false to true, and we write simply not. If you write not true, you get false. If you write false, you get true. So these are the some operators that we have. So in today's discussion, I hope you guys get some sense about small programs we have seen. और उसके साथ मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहा हूँ. एंड ये प्रॉब्लम आप ढंग से नोट कर लीजिए जरा. The problem is a Drax equation, and this is here you see this problem is basically a very old problem, and Dr. Frank Drax conducted an experiment, and that experiment was basically to search the signal from extraterrestrial civilizations. तो जो फ्रैंक ड्रैक्स थे वो ये ढूंढना चाह रहे थे कि हमारी धरती के अलावा कहीं दूसरी जगह जीवन है कि नहीं है, या कोई ऐसा और ग्रह है जहां पर जीवन पॉसिबल है कि नहीं है. तो और उसी इक्वेशन के बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसका नाम था सेती, जिसका पूरा मीनिंग था सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस. की मतलब हमारे जैसी प्रजाति किसी दूसरी दुनिया में है कि नहीं है, कि हम जो ह्यूमन बीइंग है जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, जो अपने आप को समझदार समझते हैं, उनके लिए. ये सब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद उन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसको हम ड्रैक्स इक्वेशन कहते हैं, और ये एक एक्सपेक्टेड नंबर देती है जो हमें ये बताती है कि कितने परसेंट चांस है कि और भी ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं इस ब्रह्मांड में कि नहीं करती. उनकी जो इक्वेशन है वो ये है. इस इक्वेशन में कुल मिला के 7 तरह के वेरिएबल्स हैं. पहला वेरिएबल जो है वो रेट ऑफ स्टार क्रिएशन, की किस रेट से पूरी ब्रह्मांड में स्टार्स बनते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल रेट ऑफ स्टार क्रिएशन. नासा ने कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उन्होंने ये पाया कि उसका जो रेट है वो 7 है, मतलब 7 स्टार्स पर ईयर कंडक्ट होता है. तो इस ब्रह्मांड में हर साल 7 नए सितारे जुड़ जाते हैं ना. दूसरा है परसेंटेज ऑफ स्टार्स विद प्लैनेट, कि हर एक प्लैनेट के साथ हम कितने स्टार्स हैं. तो लगभग 40% स्टार्स जो होते हैं वो हर एक प्लैनेट के साथ होते हैं. तीसरा है एवरेज नंबर ऑफ प्लैनेट दैट कैन सपोर्ट अ लाइफ. ये इस पर वाद विवाद है, किसी को पता नहीं है कितना है. तो ये आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि वो क्या समझता है, मतलब ऐसे कितने प्लैनेट्स होंगे जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं. जैसे अभी हम मंगल ग्रह पे गए हैं, मंगल ग्रह पे हम ये ढूंढ रहे हैं कि वहां पानी है कि नहीं है. तो हमारा ये मानना है कि मंगल ग्रह पर भी हम जीवन को पैदा कर सकते हैं या जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये यूजर इनपुट रहेगा, वो देगा और उस पर डिपेंड रहेगा कि वो मानता है उसको कि नहीं मानता है. अगला वेरिएबल है परसेंटेज ऑफ दोज हु कैन डेवलप लाइफ, मतलब ऐसे कितने ग्रह हैं जहां पर लाइफ को डेवलप किया जा सकता है.
इसका नंबर है 13%। अगला है परसेंटेज ऑफ दोज हु कैन गो टू डेवलप इंटेलिजेंट लाइफ। ये भी नंबर डिस्प्यूटेड है, वी कैन टेक इट फ्रॉम इनपुट फ्रॉम द यूजर। परसेंटेज ऑफ दोज हु आर विलिंग टू कॉन्टैक्ट, ऐसी कितनी स्पीसीज होंगी जो दूसरी स्पीसीज से बात करना चाह रही है कि नहीं करना चाह रही है, ये भी। एंड एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ द सिविलाइजेशन, ये हम क्या मानते हैं कि एक सिविलाइजेशन लगभग कितने सालों तक जिंदा रहती है। जैसे अगर हम अपनी सिविलाइजेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि हम पिछले 10,000 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे पता नहीं कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं ड्रैक्स इक्वेशन के और उनकी कुछ वैल्यूज हैं। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। आई एम आल्सो शेयरिंग दिस पीपीटी विथ यू गाइस, सो यू कैन लुक इट later on. Now, based on these parameters, estimate number of detectable civilizations there at any given time is calculated by using this equation. N is equal to R into P into N into F into I into C into L. तो इन सब वेरिएबल्स को हमें यूजर से इनपुट लेना है। बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज हम कौन सी वैल्यू इनपुट लेंगे, कौन सी नहीं लेंगे, कौन सी वैल्यू हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम R 7 फिक्स है, इसको हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, बाकी वैल्यू लेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको सोचना है। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके आपको ये बताना है कि आपका एस्टिमेटेड नंबर क्या है अबाउट द डिटेक्टेबल सिविलाइजेशन। सो दिस इज द असाइनमेंट फॉर टुडे डिस्कशन। जो भी हमने आज देखा, हमने डेटा के बारे में देखा, हमने देखा कि डेटा इंटीजर टाइप का होता है, डेटा रियल टाइप का होता है, डेटा स्ट्रिंग टाइप का होता है। हमने वेरिएबल को समझा और हमने देखा कि वेरिएबल एक स्टोरेज यूनिट होती है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम की डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं, बाद में उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हमने ये सीखा कि हम प्रोग्राम से आउटपुट कैसे दे सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट कैसे ले सकते हैं। और ये सीखते समय हमने ये देखा कि जब हम जो फंक्शन इनपुट यूज करते हैं वो केवल स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करता है, इसलिए हमें वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स में। हमने ये भी देखा कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास कंपैरेटिव ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हमने देखे। जो भी हमने आज देखा है उन सारे नॉलेज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए और ये हो जाता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस असाइनमेंट को कैरी आउट करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। इट टेक्स सम टाइम, सो मैं काफ़ी चीज़ों को पेस पे रखते हुए कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ों को स्लो मोशन में रन कर रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोग मेरे सेशन को अटेंड करने के बाद एक प्रिलिमिनरी रीडिंग करें इन चीज़ों की, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े इन टॉपिक्स की तरफ और आप इनको थोड़ा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएं। जो बच्चे मेरे सेशन को अटेंड करने के बाद आधे घंटे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, नेट पे पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उनके क्वेश्चंस बढ़ेंगे। वो क्वेश्चंस आप मेरे को भेजिए, मेरा मेल आईडी मैं शेयर करूँगा, नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। मैं अगले दिन जब आऊँगा 10 मिनट में उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा, आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व किए जाएंगे। लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। आपको रोज कम से कम आधा घंटे मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स को गूगल करके यहाँ से वहाँ से इनको सबको पढ़ना पड़ेगा। So with this, I'm ending today's session. I hope it was nice, and this is the hint which I'm giving with this slide. So I hope that today's session was informative to all of you and it is helpful. Okay guys, I know you are full of questions and I will try to answer each of them, but in coming sessions, I think for today, that's enough. Thank you. Bye bye. Happy learning.